Good morning, students. So today we'll take laws of refraction of light. As we have already studied about the introduction of refraction, we have done the definition and the cause, how refraction happens, why refraction happens, and there are two cases also. Okay, when light moves from rarer to denser or denser to rarer, then what happens to the direction of light? Now after that we have to take next topic, that is laws of refraction. Now it depends on that two cases only. ठीक है, as we have studied, when light moves from rarer to denser medium, I'll show you from here by the diagram. For example, this is your air and this is your water. Understood? Now air is your rarer medium and water is the denser medium. Now light is moving in air. Now when it strikes the interface of air and water, now the light has to move further. ठीक है, मीडियम वाटर मीडियम में जाएगा, अब लाइट को जाना है तो कैसे जाएगा लाइट आपका, ये इट विल चेंज द डायरेक्शन. लाइट की जो डायरेक्शन है वो सीधा नहीं जाएगी लाइट, इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन एंड इट विल मूव टुवर्ड्स नॉर्मल. सो दिस एंगल between normal and incident ray, this angle is known as angle of incidence, and this angle between normal and refracted ray is known as angle of refraction. Now can you tell me कि will these two angles are equal? क्या ये दोनों angles equal होंगे या different होंगे? Yes, जैसा कि हमें देखने पर ही लग रहा है कि these both will not be same. ठीक है, एंगल I इज नॉट इक्वल एंगल R. जो रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था वहां पर दोनों एंगल्स आपके सेम रहते हैं, ठीक है, लॉज में. बट हेयर एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R. ठीक है, और अगर हम लेते हैं नेक्स्ट केस डेंसर टू रेयरर, देन योर I विल बी लेसर देन एंगल R. सो दे विल नॉट बी इक्वल. अंडरस्टूड? तो वी विल टेक द लॉज नाउ. नेक्स्ट slide, here we have the laws. As you can see, the first law we have incident ray, the refracted ray and the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane. So this is important. plane का क्या मतलब होता है, जैसे आप अपनी नोटबुक का पेज देखते हैं, ठीक है, ये आपकी नोटबुक का एक पेज है. सो दिस पेज इज योर प्लेन. अंडरस्टूड? तो प्लेन का मतलब होता है जहां पर आप ड्रॉ कर सकते हैं. यू कैन नॉट ड्रॉ 3D शेप्स, है ना. 3D जैसे बॉल, आपको बोला गया कि बॉल बनाइए, क्योंकि उसका थोड़ा सा आपको डायमेंशन स्पेस में लेना होगा, तो वो बोलते हैं हम स्पेस, जिन्हें हम कहते हैं 3 डायमेंशनल फिगर. बट सेम प्लेन का क्या मतलब है कि अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं एयर वाटर, तो आपका इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन में आएगा और रिफ्रैक्टेड रे भी इसी प्लेन में आएगा, नॉर्मल भी इसी में. तो तीनों जो आपकी रेज हैं वो प्लेन में लाई करेंगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल टेक द नेक्स्ट लॉ. द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always equal to the constant. constant को हमने यहाँ पर सिंबल दिया है n, and this constant is known as refractive index. क्या कहेंगे इस constant को? refractive index. तो इस स्लाइड के बाद refractive index देखेंगे कि वो क्या चीज है, refractive index क्या होता है, and then we will do the some numericals also related to refractive index. ठीक है. Now here in this slide the constant is represented as mu. So in some reference books we have mu, in some reference books we have n. So it depends on us. You can take any symbol, but in your NCERT book it is represented by n only. So I'll prefer only n. Okay, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप चाहे इसे mu लिखिए और you write n. Both are correct. Okay, now the next slide we have refractive index. Now in this refractive, first point you can see
It is the property of the medium which tells the extent of bending of light. ठीक है, ये क्या बताती है प्रॉपर्टी कि लाइट ने कितना बेंड होना है. ओके, आई विल टेक 2 cases and explain you this property by 2 cases. First we have here we have air and any medium 1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले लेते हैं हम 1.5. ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है n इज इक्वल टू 1. यहां पर आपने लिया ग्लास, तो हमारा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा 1.5. नाउ आई विल टेक द सेकेंड केस ऑल्सो, एयर एंड टू वाटर. ठीक है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वही जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में है n इक्वल्स टू 1, बट वाटर का कितना रहेगा n इज इक्वल टू 1.33. ठीक है, तो आप देखिए, नाउ द लाइट इज मूविंग ऑब्लिकली इन द एयर विद द सेम स्पीड. स्पीड तो सेम ही रहेगी एयर में. दोनों केसेस में हमने ड्रॉ किया, लाइट आपका इंटरफेस पे आकर इसने स्ट्राइक किया. ठीक है, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इन बोथ द केसेस. ओके, आफ्टर दिस द लाइट विल बेंड. जैसा कि आपको पहले बताया कि रिफ्रैक्ट हो जाएगी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करती है. ठीक है, अब लाइट ने कितना बेंड होना है दोनों मीडियम में. आप देखिए, रेयरर टू डेंसर है फर्स्ट एग्जाम्पल में भी और सेकेंड एग्जाम्पल में भी, रेयरर टू डेंसर. तो लाइट ने तो बेंड होना ही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, बट दोनों में क्या डिफरेंस है, जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें ज्यादा बेंडिंग होगी. अंडरस्टूड? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, डेंसिटी ज्यादा, उस मीडियम की ज्यादा डेंसिटी है. और ज्यादा डेंसिटी का क्या मतलब है कि स्पीड उतना ही कम हो जाएगी. तो आप मुझे बताएंगे फर्स्ट और सेकंड में से कौन से केस में लाइट सबसे ज्यादा बेंड करेगी. यस, वेरी गुड, ऑब्वियसली इन फर्स्ट मीडियम 1.5 जिसका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. तो यहां पर हम कहेंगे लाइट इतना टर्न हो गई, ये लाइट बेंड हो गई. और वाटर में बेंड तो होगी इसमें भी टुवर्ड्स द नॉर्मल, बट थोड़ा सा एंगल बड़ा रहेगा यहाँ पर. ठीक है, यहां हम ले लेते हैं एंगल सपोज R2 और इसमें एंगल हमने कितना ले लिया R1. तो बताइए कौन सा बड़ा एंगल होगा, R2 की R1? विच एंगल विल बी ग्रेटर? R2 इज ग्रेटर, R2 ग्रेटर देन R1. तो हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, बेंडिंग किस में ज्यादा होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. और स्पीड किस में कम होगी, सबसे कम स्पीड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डेंसिटी, जिसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है. और हाईएस्ट किसका रहता है, डायमंड 2.42. तो उसमें लाइट बहुत स्लो मूव करती है, वेरी स्लो. एयर का सबसे लेस होता है 1. तो फास्टेस्ट इन एयर, लाइट मूव्स फास्टेस्ट इन एयर. अंडरस्टूड? चलिए, विल टेक द नेक्स्ट पॉइंट नाउ. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n, स्मॉल n. थर्ड पॉइंट, डेंसर मीडियम, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर बेंडिंग ऑफ लाइट एंड लेस स्पीड. ये आपको मैंने शॉर्ट में पॉइंट्स बनाकर लिखे हैं, तो ओनली यू कैन लर्न इजिली. ओके, रेयरर मीडियम अगर बात की जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो रहेगा, बेंडिंग भी लेस होगी, और स्पीड कैसी होगी, मोर स्पीड. ठीक है, क्लियर है? नाउ वी हैव द फॉर्मूला n इज इक्वल टू CV. Yes, you can understand by okay, I'll write for you. Here we have the refractive index. It is the formula C upon V. Now what do you mean by C? C is the speed of light in air. ठीक है, क्योंकि एयर की तो आपकी फिक्स रहती है, जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है ना, दैट इज 3 × 10⁸. एयर में जो लाइट मूव करती है वो इतनी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड होती है. वेरी किस में हो सकती है, वाटर में लाइट जाएगी तो चेंज हो जाएगी स्पीड. इफ इट मूव्स इन ग्लास देन इट विल चेंज, इट विल मूव इन डायमंड देन इट विल चेंज. तो आपके अदर मीडियम्स में चेंज रहती है. एयर के अंदर कांस्टेंट हम वैल्यू रखते हैं, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड. ओके, नाउ व्हाट इज V? V इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम. तो आप देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम ग्लास की बात करते हैं
तो वेलोसिटी, ये जो स्पीड v हम दिखा रहे हैं, ये भी किसका लेंगे, ग्लास का, क्योंकि बेंड कौन कर रहा है लाइट को, ग्लास कर रहा है. विल टेक द एग्जाम्पल हेयर. सी, एयर में लाइट मूव कर रही है आपकी एयर मीडियम में और ग्लास में एंटर कर गई, तो लाइट को बेंड किसने किया, ग्लास ने बेंड किया, एयर ने बेंड नहीं किया. एयर में तो अपनी ओरिजिनल स्पीड से मूव कर रही थी, ठीक है. ग्लास ने उसको क्या किया, बेंड कर दिया. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, वो किसका कैलकुलेट होगा, ग्लास का. अंडरस्टूड. और यू कैन सी फ्रॉम द फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम स्पीड, ठीक है. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो स्पीड कम, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, लेस है, तो स्पीड हाई रहेगी, मोर. ओके ओके. नाउ दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और जो हम ये स्पीड इन एयर से बात करते हैं ना, एयर के रिलेटिव में जो आप कैलकुलेट करते हैं स्पीड, इस स्पीड को हमेशा क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो ये जो ग्लास का हम फाइंड कर रहे हैं, तो दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्योंकि अभी एक और आने वाला है हमारे पास टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो थोड़ा सा आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए. Yes, I have written here at the last point, refractive index of water. We can write NW, ऐसे भी आप लिख सकते हैं. और you can write like this also, water with respect to air, क्योंकि air से light move कर रही है, ठीक है. तो आप किसी भी तरीके से लिखिए, both are correct. Okay, now the next is relative refractive index. अब relative term में क्या होगा, एक मीडियम को दूसरे मीडियम के साथ रिलेशन में लेना है हमने. नाउ विल नॉट टेक एयर, ठीक है. अब हमारा केस होता है अगर ग्लास से लाइट वाटर में मूव करती है या फिर वाटर से लाइट ग्लास में मूव करती है, तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, किसका लेंगे. चलिए, विल टेक द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, इफ द लाइट मूव्स फ्रॉम वाटर टू ग्लास, ठीक है. तो यहां से लाइट आपकी मूव की और नॉर्मल, और यहां पर बेंड हो जाएगी लाइट. अब यहां देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना होता है, 1.33, और ग्लास का होता है 1.5. तो अब दोनों में से बताएंगे कि कौन सा डेंसर होगा, कौन सा रेयरर. जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मीडियम विल बी डेंसर. इट मीन्स ग्लास इज मोर डेंसर देन वाटर. तो लाइट ने क्या करना है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, अवे नहीं जाएगी. तो in this case light bend towards the normal. Now we want to write in terms of refractive index. How we will write? किसने बेंड किया, ग्लास ने बेंड किया, तो ग्लास के विद रिस्पेक्ट में लिखेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है. तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा सिंबल का, लाइक दिस यू हैव टू राइट, इक्वल्स टू, और जैसा लिख रहे हैं वैसा ही आप यहां लिखेंगे. इसको रेशियो में भी आप लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. ओके, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. तो जो लाइट बेंड करेगा, जो मीडियम लाइट को बेंड करेगा, वही आपने आगे लिखना है इसके साथ, एन के साथ वही मीडियम आएगा जो बेंड कर रहा है, उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं हम. ओके, बात आई क्लियर में. और अगर स्पीड की बात करें इसमें फॉर्मूला, तो देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेना है हमेशा. अगर ग्लास आप न्यूमरेटर में रख रहे हैं तो इसकी स्पीड को डिनोमिनेटर में रखेंगे, ठीक है. तो हमेशा याद रखो, स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो हाउ वी विल राइट, वी डब्ल्यू अपॉन वी ग्लास. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर टेकिंग, if the light moves from glass to water, then what will happen? आप अपने आप भी बच्चे ट्राई कर सकते हैं. So we have, this is the interface and this is glass and other medium is water. ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1.5 and water 1.33. Now the light is moving in glass, it has to come in water. अब देखिए, डेंसर टू रेयरर वाला केस आ गया आपका,
और जब भी लाइट डेंसर टू रेयरर मूव करेगी इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अवे मीन्स लाइक दिस. ठीक है, दिस इज योर एंगल आई and this is angle R. Okay, now we have to write down its representation. चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में लिखते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन बेंड कर रहा है लाइट को? वाटर. सो वी विल राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to glass equals to, now we have the ratio also, refractive index of water upon refractive index of glass. Or we have, if we want to write in terms of speed, then speed of glass upon speed of water. Understood, students? I hope you all have understood this concept. Watch this carefully, this video, and try to solve the assignment. I will send that assignment tomorrow on this app only. Thank you, students.